Assalamualaikum students, I am your physics teacher Ghulam Shahzadi. You have discussed yesterday the conditions of the sound, that were body should vibrate and it should have medium and it should be longitudinal. Today we will discuss about the characteristics of the sound. What are the basic characteristics of the sound that are required here for this chapter? The first characteristic for the sound is wavelength. You have discussed earlier what is wavelength. That is the consecutive distance between the crust and trough, that is called wavelength. Here in case of sounds we discussed compressions and rarefactions. So we said that the distance between consecutive compressions and rarefaction, that is called wavelength. Is it clear, beta ji? Second one is frequency. What is frequency? The number of waves per second or the number of sound waves per second, that is called frequency. You have discussed in first chapter what is frequency, that is waves or vibrations. Here to relate it with sound, that is frequency is number of sound waves per second, that is called frequency. And the third one characteristics is time period. Number of sound waves per second, that is called time period. बेटा आपने पहले भी इसको डिस्कस किया. टाइम पीरियड क्या होता है? एक सेकंड में या जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है उसको आप क्या कहते हो? टाइम पीरियड कहते हो. यहाँ पे जितने टाइम में एक साउंड वेव कंप्लीट होगी उसको आप क्या कहोगे? टाइम पीरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one cycle or one wave of sound, that is called time period. You can denote it by capital T and frequency is denoted by small f. These are the basic characteristics you have discussed earlier, and here in this case now we are discussing the general characteristics of the sound that are the major part of this topic. First characteristics is loudness of the sound. Loudness of the sound. बेटे आप loudness of the sound को कैसे differentiate करोगे? Loudness of the sound is the characteristics of the sound through which you can distinguish between loud and faint sound. It means that कि आप किसी भी ऊंची आवाज और धीमी आवाज के दरमियान जो डिफरेंशिएशन करते हो वो क्या कहलाती है? आपके पास loudness कहलाती है. ठीक है. Characteristics of the sound through which you can distinguish between loud and faint sound. इसकी सिंपल एग्जांपल बेटा ऐसे लेते हैं जिस तरह मैं अभी आपको आपकी मेरी साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज वेरी लाउड. इसके निस्बत अगर मैं विस्परिंग कर रही हूँ तो आपको वही आवाज बहुत ही फेंट सुनाई देगी. ठीक है. सो यू कैन डिफरेंशिएट कि अभी आपकी आवाज लाउड है, अभी आपकी आवाज क्या है? फेंट है. तो सो यू कैन से दैट दिस इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड. अब लाउडनेस ऑफ द साउंड भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. यहाँ जो आपके पास मेजर फैक्टर्स आते हैं वो 3 फैक्टर्स हैं इसके लाउडनेस के. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा आपके पास? यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर आपके पास आ जाता है, वन इज amplitude, second one is distance and third one is area. इन तीनों पे लाउडनेस कैसे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड होता क्या है बेटा? कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एक मीन पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का, वो क्या कहलाता है आपके पास? एम्पलीट्यूड. सपोज मैं दो एक वेव लेती हूँ, ये यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये. ठीक है. अगर मैं इसकी कंपैरिजन में एक और वेव कंसीडर करती हूँ, ये यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये. दोनों में एम्पलीट्यूड क्या है? डिफरेंस है.
Larger the amplitude, larger will be the loudness of the sound. So we can say that amplitude and loudness of the sound have direct relation. Clear है बेटा जी? Second one is distance. जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है, आपको लाउड उसके किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस पे. मीन्स टू से दैट अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ जो क्लासरूम में बैठे होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए मेरी आवाज लाउड है बिकॉज दे आर एट द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम मी. बट अगर यही कंपैरिजन में किसी थर्ड वन या फोर्थ वन रूम से करूँ तो वो बच्चे का उनको मेरी आवाज बहुत ही फेंट सुनाई देगी, उनके लिए वो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी. इट्स मीन कि डिस्टेंस के साथ लाउडनेस क्या करती है, इनवर्सली वेरी करती है. क्लियर बेटा जी? लाउडनेस के साथ डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. एज फार एज डिस्टेंस इंक्रीजेस लाउडनेस विल बी डिक्रीजेस. और थर्ड फैक्टर आता है आपके पास बेटा एरिया का. एरिया की सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. आपके पास ये जो ढोलकी होती है दो तरह की होती है आपके पास, एक लार्जर साइज में एरिया होता है जिसका, और एक स्मॉलर साइज होता है. आप दोनों में सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब दोनों में सेम फोर्स अप्लाई करके उसको वाइब्रेट करेंगे तो लार्जर एरिया वाली ऑब्जेक्ट है ये जो ढोलकी है वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू द स्मॉलर एरिया जो आपके पास ऑब्जेक्ट है. उससे क्या क्लियर होता है आपके पास कि लाउडनेस का एरिया के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है. क्लियर है बेटा जी? डायरेक्ट रिलेशन विद लाउडनेस. क्लियर है? ये तीन फैक्टर्स हैं जो किस पे डिपेंड कर रहे थे बेटे, लाउडनेस पे डिपेंड कर रहे थे, सॉरी लाउडनेस इन पे डिपेंड कर रही थी. ठीक है. सेकेंड वन आपके पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक पिच ऑफ द साउंड की. पिच ऑफ द साउंड की सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटे. एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स की आवाज क्या होती है, बहुत ग्रेव होती है, यू कैन से दैट गहरी सी आवाज होती है उनकी. ठीक है. तो उसमें अगर हम उसको कंपैरिजन करें यहाँ पे पिच ऑफ साउंड, यहाँ पे हम देखते हैं इसी तरह बच्चों की आवाज चीखदार आवाज होती है बच्चों की. ठीक है. श्रिल साउंड होती है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम श्रिल और ग्रेव साउंड को डिफरेंशिएट कर सके वो क्या कहलाता है आपके पास, पिच ऑफ द साउंड. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड through which we can distinguish between shrill and grave sound. Shrill और grave sound क्या है बेटे? Shrill is very thin voice, you can say that. चीखदार आवाज जिसको कहते हो. ग्रेव साउंड क्या आपके पास, गहरी आवाज जिसको कहते हो, भारी भरकम आवाज जिसको आप कहते हो. ठीक है. ये आ जाता है आपके पास. आप कहेंगे बेसिकली ये पिच ऑफ द साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जिस तरह लाउडनेस के तीन फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रही थी, इसी तरह पिच भी है, इसके भी कोई फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है. ठीक है. बेसिकली जो पिच ऑफ द साउंड है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे. एज फार एज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, पिच ऑफ द साउंड विल बी ग्रेटर. यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द पिच ऑफ द साउंड. यहाँ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर देती हूँ बेटे. ये आपके पास वेव है. ठीक है. यू हैव टू वेव्स इन अ गिवन डेटा, बट हियर इन सेम टाइम यू हैव number of waves. It's mean here the frequency is greater, but here the frequency is lesser. You can say that pitch of the sound in this case is greater as compared to the pitch of the sound as the first case. इसीलिए हम कहते हैं जो फीमेल है या बच्चे हैं उनकी आवाज श्रिल होती है, ये उनकी पिच हाई होती है. इट्स मीन कि उनकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द मैन साउंड. ठीक है बेटा, या मैन वॉइस. यहां तक क्लियर हो गया पिच ऑफ द साउंड. अब थर्ड वन क्वालिटी हम देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो क्या है. बेसिकली इट विल बी द सिक्स. हमने पहले तीन भी डिस्कस किए हैं जो आप पहले से पढ़ के आए, उसको भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में ही ऐड किया है. ठीक है. दिस इज क्वालिटी ऑफ द साउंड. क्वालिटी ऑफ द साउंड. अब बेटा आपके पास सेम लाउडनेस हो और सेम पिच हो, फिर भी आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको. यू कैन से दैट साउंड द कैरेक्टरिस्टिक थ्रू व्हिच दैट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. Characteristic through which sound of
same loudness as well as pitch can be distinguished. It's mean बेटा कि आपके पास पिच भी सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो दोनों साउंड्स की, और उनकी लाउडनेस भी सेम हो, मीन्स टू से उनका एरिया, एम्पलीट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, बट स्टिल यू कैन डिस्टिंग्विश दीज टू वॉइसेस. तो वो क्या कहलाता है आपके पास क्वालिटी ऑफ द साउंड. जैसे आपकी बुक में एक दो ग्राफ्स बने हुए हैं बेटा, जैसे एक ग्राफ आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, सेकंड आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का है, उसकी वेव इस तरह से शो हो रही है आपके पास, और थर्ड वन इंस्ट्रूमेंट की आपके पास इस तरह से आ रही है, इस तरह से. अब देखें तीनों में फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, आपके पास एरिया भी सेम है, और ईच एवरीथिंग विल बी सेम, बट इनकी वेव फॉर्म में क्या है डिफरेंस है. ये देखें तीनों की वेव फॉर्म डिफरेंट दे रही है. ये वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से क्या है आपके पास, आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि ये क्या आपके पास दोनों आवाजें क्या है डिफरेंट है. यू कैन से दैट डिफरेंट साउंड प्रोडक्शन है. इसके सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. क्लास में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं और सेम लाउडनेस के साथ बोलने से आप बाहर खड़े डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अंदर इस वक्त ये कौन कौन से बच्चे बोल रहे हैं. बाय नेम आप उनको डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो. तो दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी द क्वालिटी ऑफ द साउंड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आती है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. दैट इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव क्वालिटी. आप इसको मेजर कर सकते हो बेटा. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. इंटेंसिटी को जनरली आप डिफाइन कैसे करते हो बेटा. इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी चीज की शिद्दत, हाउ मच द क्वांटिटी इज. ठीक है. जैसे आप हीट के करीब बैठते हो, कहीं आग के करीब बैठते हो, जितना आप करीब बैठोगे आपको उसको ज्यादा इंटेंस हीट फील होगी. जितना आप अगर जाते हो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है कम. सिंपल वर्ड्स में आप उसको ये कहते हो. ठीक है. तो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड क्या है, नंबर ऑफ द साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. नंबर ऑफ sounds per unit area, that is called intensity of the sound. अब जैसे आपके पास ये कोई भी एरिया आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप साउंड वेव्स ड्रॉप करवा रहे हो. साउंड वेव्स इसके ऊपर फॉल करेंगी. अभी कितनी साउंड वेव्स फॉल कर रही है 3. इसकी इंटेंसिटी ये. अगर मैं इसको इंक्रीज करके स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा देती हूँ, अब इसमें क्या है साउंड वेव्स इंक्रीज कर रही है ना पर यूनिट एरिया. जब वो इंक्रीज करेंगे तो इट्स मीन कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. इसकी यूनिट अगर अभी कहा था ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास. इसकी यूनिट आती है आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. ये इसकी यूनिट आ जाती है. दीज आर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट आर मेंशन इन योर चैप्टर ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स.